So welcome to CFA Level 3, 2026. And this session, I'm going to give you a complete idea of how we prepare for CFA Level 3. So I'll start with explaining how Level 3 differs from CFA Level 2. Now, firstly, in CFA Level 2, you had depth. Or I should start with Level 1. Level 1 was breadth. Everything was introduced. Level 2 was a depth. We went into certain topics with very, very deep details. And level 3 is about judgment. Level 1 is breadth, level 2 is a depth, and level 3 is judgment. If this seems to be a dialogue, let me come out of the dialogue. So I'm asking you a question. Please remember the Grinold-Kroner model of CFA Level 2. Advanced cost of capital chapter. Grinold-Kroner model was there. If you remember the Grinold-Kroner model, please reply yes. In CFA Level 2, we had the Grinold-Kroner model, corporate issuers, cost of capital, advanced concepts. Yes, I'm getting green signal. So for those of you, in case you don't remember, Grinold-Kroner model, we used to find out the expected return. They called it the cost of equity, and that was equal to dividend yield plus capital gains yield. And capital gains yield was equal to growth rate of real GDP plus inflation plus growth rate of the earnings share of GDP plus growth rate of P ratio minus the percentage change in number of shares. Are you getting it? I'll not be able to use the board too much because I'm taking the class on Zoom. Expected return is dividend yield D1 by P0 plus G, but the growth rate was the growth rate of real GDP plus expected inflation. So you get the nominal growth rate plus the growth rate of earnings to GDP ratio plus the growth rate of P ratio repricing and minus the percentage change in number of shares buyback. That was the Grinold-Kroner model. You can take 2 minutes to recap the same, but most people are saying that yes, sir, it is recapped. So in that case, level 2 they will give us data and we have to basically remember the model and we have to find out the answer. That was level 2. Level 3 I said it's about judgment. What do I mean? So I'm asking a question, apply your brain and give me the answer. If we forecast that labor share of GDP is going to rise, if we forecast that the labor share of GDP is going to rise, what will happen to the expected return as per the Grinold-Kroner model, other factors remaining constant? If we expect the labor share of GDP to rise, in that case, what will happen to the expected return as per Grinold-Kroner model? You can type in your answer, please, Ankit Chaudhary, in case you're wanting to answer. Jeet is saying it will decrease. Expected return क्या होगा? हिंदी में बोलूं, अगर लेबर शेयर बढ़ने वाला है, तो in that case, what will happen to expected return? Richa Sharma is saying it will decrease. Any other person, please, wanting to reply? नहीं, अंकित चौधरी बोलना अलाउड नहीं है, आप टाइप कर सकते हैं. ओके, बोलने का पॉसिबिलिटी नहीं है. इट्स गेटिंग डिस्टर्ब्ड. So the answer is obviously expected return will fall. Expected return will. हितेश बोल रहा है increase at a decreasing rate. तो हितेश ऐसा कुछ हो रहा है क्या कि तुम सोच रहे हो कुछ हट के बोलते हैं आज? It seems like हितेश बोल रहा है कुछ हट के बोलते हैं. The question was it will increase or decrease. तो तुम हट के बोल रहे हो increase at a decreasing rate. वाह, ठीक है. The answer is it will decrease. If the labor share of GDP is going to rise, in that case, expected return will fall. Okay, expected return will fall. Tell me something. What is the reason you will give in the level 3 exam? Q. Why will it fall? Answer is it will fall. Why will it fall? Give a one-liner answer. Why will it fall? Jeet Suvarna का आंसर आ गया, which I am not sharing with you all. जीत सुवर्णा का आंसर आ गया. फुल मार्क्स. फुल मार्क्स. जैसे आप लोग मैसेज में लिखते हो ना, वैसे एग्जाम में लिखना है, फुल सेंटेंस नहीं. वाई, रीजन क्या बोले? जस्टिफाई विथ वन रीजन. जस्टिफाई विथ वन रीजन. वेदांत का आंसर रॉन्ग है. वेदांत सिंह का आंसर रॉन्ग है. ऋचा शर्मा का आंसर राइट है.
वेदांत सिंह का आंसर रॉन्ग है, ऋचा शर्मा का आंसर राइट है, बाकी लोग कुछ बोल रहे नहीं है. In case somebody missed out, question was labor share of GDP is going to rise. So what will happen to the expected return as per Greenwald-Kroner model? The answer is, sir, expected return will fall. So in that case, लिखा हुआ है justify. Give one reason. आपको पता है ना, लेवल 3 में रिटर्न आंसर है. You'll have to justify. तो जस्टिफिकेशन का दो लोगों ने करेक्ट आंसर दिया. ठीक है, तो जस्टिफिकेशन में कुछ लोग क्या लिख के आते हैं सुन लेना. कुछ लोग लिख के आते हैं expected return will fall because labor share of GDP is going to rise. Expected return will fall because labor share of GDP is going to rise. They will not get marks in it. Why? Because you are repeating facts. Labor share is going to rise. ये तो facts में लिखा हुआ था, आप वही लिख के बोल रहे थे therefore expected return will fall. This is not acceptable. You have to write labor share of GDP is expected to rise, therefore earnings to GDP ratio will fall and therefore expected return will fall. अगर जो जीडीपी है उस पर लेबर का शेयर डब्ल्यू बढ़ेगा तो पी गिरेगा ना, तो अर्निंग शेयर टू जीडीपी विल फॉल, therefore expected return will fall. Did you get the stuff? Did you get the stuff? Yes, please अवधेश, अभी मैं आंसर एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं बोलने के बाद. Okay, I'm not accepting the answer now. You got the stuff. Let me try a second question along the same line. Second question try कर रहा हूं. जो जोश में नहीं है जोश में आ जाओ. One of the reasons for lack of results in level 3 is that जोश पता नहीं कहां चल जाता है. Please come into जोश. Listen. Anuja, don't say anything, please. In case you are unmuted, don't say anything. Please don't disturb. Okay? Listen. So, the point is, the second question that I'm asking is, what will happen to the expected return on equity as per Greenwald-Kroner model if, let me frame it, if the proportion of earnings of non-index constituents is going to fall. If the proportion of earnings of non-index constituents is going to fall, proportion of earnings of non-index constituents is going to fall. So what is expected to happen to the expected return as per the Greenwald-Kroner model? अंकित चौधरी करेक्ट बोला है, खान करेक्ट बोला है, खान. क्वेश्चन था if the proportion of earnings of or the earning share of non-index constituents is going to fall, so what will happen to the expected return as per Greenwald-Kroner model? सब जन ने करेक्ट बोला है, इट विल राइज. इट विल राइज. रीजन क्या दोगे? जस्टिफाई विथ वन रीजन. बोल रहे द शेयर ऑफ नॉन इंडेक्स कंस्टिट्यूएंट्स इज गोइंग टू फॉल. So what will happen to the expected return as per Greenwald-Kroner model? The answer is it will rise. Correct answer. It will rise. और justify. Reason क्या दोगे? Justify. जीत सुवर्णा का करेक्ट आंसर है. जीत सुवर्णा का करेक्ट आंसर है, फुल मार्क्स. अंकित चौधरी का करेक्ट आंसर है, यस. अंकित चौधरी का करेक्ट आंसर है. जीत सुवर्णा करेक्ट आंसर है, अंकित चौधरी का करेक्ट आंसर है. Richa, are you taking your own time? Non-index constituents का proportion is going to fall. So what is going to happen to expected return on equity? So it will rise. Why? Because the share of index constituents will rise. If the share of non-index constituents will fall, the share of index constituents will rise. That is earnings to GDP ratio will rise. Okay? Greenwald-Kroner मॉडल में अपने इंडेक्स का रिटर्न निकालते हैं, इंडेक्स का जैसे निफ्टी का. वी कैलकुलेट द रिटर्न ऑन एन इंडेक्स लाइक निफ्टी और सेंसेक्स. So the non-index constituents का share will fall. So the index constituents का share will rise. Okay? And therefore the earnings to GDP ratio will rise. Let's take another question. Another question is take 1 minute and try to recap securitization. Try to recap securitization. ध्यान आ रहा है? Special purpose vehicle SPV. It will issue senior tranche, mezzanine tranche, junior tranche. ध्यान आ गया होगा, पिक्चराइज हो गया होगा. ठीक है, पिक्चराइज हो गया होगा. अब क्वेश्चन क्या है सुनो. सर हमने तो लेवल 3 किया नहीं, कैसे आंसर करेंगे? इट इज नॉट बेस्ड ऑन लेवल 3 नॉलेज.
It is not based on level 3 knowledge. Obviously, when I'm teaching, I'm going to teach as per knowledge which is not related to level 3. So listen to the question. Take your time. Don't jump. First answer देने का जरूरत नहीं है. Take your time. If default correlation is expected to rise as per the Capital Market Expectations Committee, the default correlation is going to rise. Default correlation is going to rise. Then in that case, from a point of view of fixed income asset allocation के अंदर जाके will be allocate more to senior tranche or more to mezzanine tranche. Question समझ लो, jump मत करना. If default correlations are expected to rise, then within the fixed income category, are we going to allocate more to the senior tranche or more to the mezzanine tranche? Third time question पूछ रहा हूं. If default correlation is expected to rise, in that case, are we expected to allocate more to the senior tranche or more to the mezzanine tranche? Beautiful. सबका आंसर करेक्ट आ रहा है. Beautiful. सबका आंसर करेक्ट है. The answer is senior tranche. We are supposed to allocate more to the senior tranche. Please justify. Answer है we are supposed to allocate more to the senior tranche. Please justify. ये मत सोचो सर जस्टिफिकेशन ऐसे कैसे लिखें, बिकॉज छोटा ही तो लिखना है एग्जाम में. छोटा ही तो लिखना है एग्जाम में. यस प्लीज. ओके सो आई कुड सी दैट यहां पे देखो, यहां पे जो आप लोग लिखना चाह रहे हो, इन केस कभी कभी ऐसा होता है ना लेवल 3 में भी से दैट राइट लेस राइट लेस राइट लेस, बट सपोज समटाइम्स इट सो हैपेंस दैट यू नो द रीजन but you will take more sentences to explain the reason. It is better to take more sentences. I'll repeat myself. I'll come to the answer. कभी कभी ऐसा होता है कि सर मेरे को पता है इसका रीजन क्या है, पर मेरे को 3-4 सेंटेंसेस लगेंगे उसको समझाने में, वरना मैं समझा नहीं पाऊंगा या नहीं पाऊंगी. तो इन दैट केस सर क्या 3-4 सेंटेंस पे समझाना चाहिए? आंसर इज यस, बट यहां पे स्कोप नहीं है. तो बेसिकली वी नो दैट the yield on mezzanine tranche is greater than the yield on senior tranche. The yield on mezzanine tranche is greater than the yield on senior tranche because mezzanine tranche में ज्यादा default risk होता है. But if default correlations are going to rise, इसका मतलब even senior tranche is going to default when the mezzanine tranche defaults. Even the senior tranche is going to default when mezzanine tranche defaults. Okay, when a senior tranche ka default will be higher as compared to what was thought of. We're not saying it will be higher than mezzanine tranche. But if the default of mezzanine tranche was considered to be say 10% and the default of senior tranche was considered to be 2%, the default of senior tranche will actually be higher, say 4 or 6%. So in that case, we require that the senior tranche should have माने जो क्या बोलते हैं सीनियर ट्रांच जो है ना उसमें भी रिस्क इन्वॉल्व है. इट इज जस्ट लाइक द मेजनाइन ट्रांच बट इट इज नॉट प्रोवाइडिंग द रिस्क प्रीमियम. मेरे को सीनियर ट्रांच पे भी डिफॉल्ट सहना पड़ेगा पर उसके लिए प्रीमियम है नहीं. तो अगर है नहीं तो सीनियर ट्रांच क्या करेंगे? डंप. वी विल शॉर्ट सीनियर ट्रांच एंड बाय द मेजनाइन ट्रांच और वील एलोकेट मोर. सॉरी वी विल, तो आपने उल्टा बोल दिया क्या? आंसर क्या बोले थे आप लोग सब जन? डिफॉल्ट को नहीं, हाँ सीनियर ट्रांच तो खराब हो गया ना. अगर डिफॉल्ट कोरिलेशन बढ़ने वाला है, डिफॉल्ट कोरिलेशन, तो इन दैट केस मेजनाइन ट्रांच के साथ साथ सीनियर ट्रांच भी डिफॉल्ट करेगा. तो मेजनाइन ट्रांच तो डिफॉल्ट करना ही था बट सीनियर भी डिफॉल्ट करेगा. तो वी विल प्रेफर द मेजनाइन ट्रांच नॉट द सीनियर ट्रांच. वी विल प्रेफर द मेजनाइन ट्रांच नॉट द सीनियर ट्रांच. अगर डिफॉल्ट कोरिलेशन राइज करने वाला है तो इसका मतलब सीनियर भी मेजनाइन के साथ डिफॉल्ट करेगा. सीनियर भी मेजनाइन के साथ डिफॉल्ट करेगा. तो इन दैट केस why would we go for the senior tranche? Because senior में तो yield भी नहीं है ना. तो in that case we will go for the mezzanine tranche instead of the senior tranche if default correlations are going to rise. But if default correlations are going to fall, then whatever default occurs which will be absorbed by the junior tranches, by the mezzanine tranches, the senior tranche will be safe. We'll go for the senior tranche. Okay, तो अगर default correlation rise करने वाला है, we prefer the mezzanine tranche instead of the senior tranche. Logic? Because even senior tranche will default just like the mezzanine tranche. Okay, but mezzanine tranche provides a risk premium, but the senior tranche does not provide the risk premium. Understood? So what I was trying to mention over here is that level 3 का stuff is quite often judgmental. जैसे level 3 का stuff में judgment involved है, where you have to think about the logic and you have to think from the fund manager's perspective, the CIO perspective.
Okay, the allocator's perspective, asset allocation, okay, between country, between asset class, within the asset class, and so on and so forth. I'll take my own time. So my first communication, in case you are writing, is that level 3 different from level 2 क्यों है? Because level 3 में judgment है. That's my first judgment. That's my first submission. Level 3 is different from level 2 because it involves a judgment. और मैं judgment dialogue दे के निकल जाता, तो मैंने 2-3 एग्जांपल्स दे दिया. सर और एग्जांपल्स दीजिए ना. देंगे, थोड़ा मोनोटोनस हो जाएगा, आगे बढ़ते देंगे. दूसरा, लेवल 3 इज डिफरेंट बिकॉज यू नो कि लेवल 3 में जो पेपर आएगा उसमें पेपर, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, फर्स्ट पेपर में से 11 आइटम सेट्स है. 11 में से वी हैव से 6 आइटम सेट्स एंड 5 कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स. 6 आइटम सेट्स, 5 कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स, या 5 आइटम सेट एंड 6 कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स. डू आई हैव समथिंग ओवर हियर जिससे कि मैं दिखा सकूं? मेरे को जस्ट देखने दो 1 मिनट. तो आई थिंक आप लोगों को स्क्रीन दिखना चालू हो गया होगा. स्क्रीन दिखना चालू हो गया होगा, प्लीज कंफर्म. स्क्रीन दिखना चालू हो गया है ना? एक थम्स अप देना अगर स्क्रीन दिखना चालू हो गया है. तो उसमें ओके, थैंक यू. हाउ लेवल 3 डिफर्स फ्रॉम L2 एंड L1. ये मेरा पहला फोल्डर था आज जो मैं रेडी कर रखा था. एंड इसमें लेट अस लुक एट अ पर्टिकुलर पेपर ऑफ लेवल 3. लेवल 3 का ये टिपिकल पेपर है. ओके, सो यू कैन सी द ब्रेकअप विच इज ओके. 11 आइटम सेट्स आपको दिख रहा होगा, 132 मिनट्स. एंड नाउ द फर्स्ट वन इज एन आइटम सेट. ये तो लेवल 2 का फीलिंग है. 4 क्वेश्चंस. सेकेंड वन पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन से है. वेंचर कैपिटल, सीनियर सिक्योर्ड बॉन्ड. And this one, look at it. Determine which alternate investment candidate provided by Stern would offer the best liquidity. Venture capital, senior secured collateralized loan, infrastructure, or market neutral hedge fund. Okay. Determine. बताना है केवल, लॉजिक नहीं देना है, डिटर्मिन करना है. और जस्टिफाई योर रिस्पॉन्स बोला है, जस्टिफाई योर रिस्पॉन्स. तो डिटर्मिन एक तो बताना है और दूसरा आपका रीजनिंग देना है. सेकेंड वाले में डिस्क्राइब अदर देन इंप्रूव्ड लिक्विडिटी व्हाई अ सेकेंडरी मार्केट इन्वेस्टमेंट में बी मोर अप्रोप्रिएट फॉर द फाउंडेशन देन अ प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट. डिस्क्राइब. Identify 2 challenges faced by the investment committee in planning for liquidity for a private equity portfolio. Fourth, discuss 3 key factors Miller should consider for effective monitoring of the foundation's private equity managers. So you understand over here, the answers have to be written over here. ठीक है, आंसर्स कैसे लिखेंगे कैसे नहीं लिखेंगे वो अपने सोचेंगे, वो अपने डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो दैट्स अ स्मूथ प्रोसेस जो धीरे धीरे होता है. वी विल डिस्कस इट टुडे ओनली एंड इन ऑल द क्लासेस टू कम. एंड क्लासेस में आजकल तो मेरा हैबिट हो गया है, मैं आजकल जब क्लासेस कराता हूं तो गिवन द फैक्ट दैट स्टूडेंट्स सो मच वरी अबाउट आंसर कैसे लिखना है, हम लोग ज्यादातर क्वेश्चंस क्लास में आजकल रिटन वाला करते हैं, तो मैं आंसर डिक्टेट करता हूं. ओके, वी डिक्टेट द आंसर इन द क्लास, प्लस आई डू क्या बोलते हैं ग्रेडेड सेशंस, लोगों का पेपर चेक करता हूं. सो दिस इंश्योर्स दैट पीपल आर वेरी कंफर्टेबल नाउअडेज विथ हाउ टू राइट, व्हाट टू राइट. तो लेवल 3 और लेवल 2 में 2 डिफरेंस है. नंबर 1, लेवल 3 में कैलकुलेशन नहीं है, जजमेंट है. ओके, इट्स वेरी वर्डी, इंग्लिश ओरिएंटेड है लेवल 3. एंड नंबर 2, लेवल 3 का पेपर पैटर्न डिफरेंट है. कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स है, आधा पेपर आइटम सेट है. ठीक है सर, एथिक्स से भी कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स आ सकता है क्या? आ सकता है. गिफ्ट से तो आया हुआ है ही, एथिक्स से याद नहीं आता कब आया हुआ. ठीक है, बट आने को आ सकता है. ठीक है, नेक्स्ट जो डिस्कशन करना है मेरे को, दैट डिस्कशन इज अबाउट why level 3 is dangerous. Why level 3 is dangerous. अंकित is saying गिफ्ट से आता है. मैंने भी तो यही बोला अंकित कि गिफ्ट से आइटम से कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स आता है. एथिक्स से कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स कब आया था ये मेरे को याद नहीं है. गिफ्ट से तो कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स आता है, मेरे को पता है, मैंने बोला भी, पर एथिक्स से वी डोंट नो. ठीक है, मतलब इट डजंट कम यूजुअली, कभी जिंदगी में आया होगा तो आई डोंट नो. नाउ सेकेंड पॉइंट इज why level 3 is dangerous. Why level 3 is dangerous? Why does it so happen that some students, they just get stuck up in level 3 and are not able to clear? Why is it dangerous? Okay,
Why is it dangerous? I'll share all the folders with you. जो ही मेरा folders बनाया हुआ वो सारा शेयर कर लूंगा. Don't have to worry about it. सुनिएगा, why level 3 is dangerous? पहला रीजन लेवल 3 के डेंजरस होने का इज द फैक्ट दैट स्टूडेंट्स का एक डिसरिस्पेक्ट है लेवल 3 की तरफ. डिसरिस्पेक्ट क्यों है? बिकॉज दे हैव हर्ड दैट लेवल 2 इज द टफेस्ट लेवल in the entire CFA program. Have you heard that? Level 2 is the toughest level in the entire CFA program. Have you all heard that? Those who have heard, they can reply, please. Level 2 is the toughest level in the CFA program. Have you heard that? Yes. People are saying. तो अगर लेवल 2 टफेस्ट और आप वो क्लियर कर लिए तो लेवल 3 तो बात ही क्या है? इस टाइप का एक अंदर ही अंदर एक इम्प्लिसिट बिलीफ आ जाता है जो कि रॉन्ग है. बिकॉज लेवल 2 में कैलकुलेशंस था, मॉडल्स थे और उस पर ज्यादातर इंडियन ब्राइट स्टूडेंट्स आर वेरी स्ट्रांग. लेवल 3 में जजमेंट है और वहां पे थोड़ी दिक्कत आती है. ओके, वहां पे दिक्कत आती है. सेकेंड रीजन इज दैट पता नहीं लोगों को लगता है कि लेवल 2 हो गया ना तो उस केस में यार अब तो सीएफए हो ही गया. ऐसा क्यों लगता है? बिकॉज यू विल फाइंड दैट इंडस्ट्री में आपका एक्सेप्टेंस ज्यादा हो जाता है लेवल 2 के बाद. यू विल फाइंड दैट पीपल ऑल्सो स्टार्ट, अब तो तेरा यार सीएफए लेवल 3 होने वाला है, आपको जॉब मिल जाता है इनकेस आप जॉब नहीं कर रहे थे. ठीक है, और आपको भी मन में लगता है हाँ अब तो लेवल 3 होने वाला, माने सीएफए कंप्लीट होने वाला है. ठीक है, आगे क्या करना उसका सोचते हैं. शादी वगैरह जिनको पक्का करना है वो लोग शादी पक्का करना चालू कर देते हैं. सॉरी फॉर जोकिंग. सो देयर इज एन इम्प्लिसिट बिलीफ दैट लेवल 3 तो अब होने वाला है, सीएफए कंप्लीट होने वाला है, विच इज नॉट ट्रू. थर्ड, सीएफए लेवल 3 में जो टाइम मैनेजमेंट है वो स्टूडेंट से होता नहीं है. आजकल थोड़ा सुधरा है. पहले क्यों नहीं होता था? पहले जो पेपर 1 था that used to be written, पूरा written, constructive response, and paper 2 was item set. पहले paper 1 was written, let's call it AM session, and paper 2 was item set. तो paper 1 में लोगों का पेपर छुटता था. अब CFA इंस्टीट्यूट ने क्या किया? ये बहुत AM PM हो गया. CFA इंस्टीट्यूट ने मिक्स कर दिया कि 6 क्वेश्चंस कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स, 5 क्वेश्चंस आइटम सेट, या 5 कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स, 6 आइटम सेट. तो अब आप पेपर 1 पेपर 2 नहीं बोल सकते. इट्स लाइक दोनों में मिक्स्ड है. तो अब आजकल छुटने का स्कोप कम हो रहा है, बट फिर भी कोई कोई लेके बैठ जाता है तो क्या बोले. ठीक है, लेवल 3 में आंसर कैसे लिखना है उसका भी बहुत बड़ा चैलेंज है. हाउ टू राइट द आंसर. ठीक है, इसके ऊपर लास्ट 1.25 ईयर्स से आई हैव पुट एक्सेसिव एफर्ट. वीडियोस रिलीज हुए हैं एग्जाम्पल वाले, जहां पे एग्जाम्पल ले लेके दिखाया है कि देखो क्या पूछा है और आप क्या लिख रहे हो. आप कुछ और ही लिख रहे हो, या फिर आप फैक्ट्स को रिपीट कर रहे हो, या फिर आप इनएफिशिएंटली लिख रहे हो आंसर को टान टान के. ठीक है, तो मैंने पीपल कीप ऑन डूइंग ऑल दैट एंड दैट रियली हर्ट्स. सो टाइम चला जाता है, बीटिंग अराउंड द बुश से फायदा नहीं होता है. वो एक रीजन पूछे, जस्टिफाई वन रीजन, पीपल राइट 4 रीजंस. ठीक है, तो अगर फर्स्ट रीजन आपका रॉन्ग है तो बाकी तीनों चेक ही नहीं करेगा. से यू हैव रिटन 4 रीजंस, ओके, और सेकंड थर्ड और फोर्थ रीजन राइट है, फर्स्ट रीजन रॉन्ग है, तो आपका गया 0. बिकॉज वो केवल फर्स्ट वाला चेक करेगा, ये रूल एग्जामिनर का. ही विल नॉट चेक दी अदर रीजंस. उसके बाद सर जो मैथमेटिकल क्वेश्चन है उसके अंदर कैलकुलेशंस दिखाना है क्या बीच का, इसके ऊपर भी डाउट होता है. तो इन दैट केस रूल ये होता है कि अगर आप श्योर है कि आप राइट कर रहे हो तो नहीं दिखाना है, स्ट्रेट अवे गिव द आंसर. अगर वो बोला कैलकुलेट, पर अगर आपको लगता है कहीं ना कहीं सिली मिस्टेक हो सकता है तो इट्स बेटर टू शो द स्टेप्स. पर सजा सजा के नहीं, बट जस्ट स्टेप्स शो करने. In case you are sure you are correct, don't show the steps. In case you are unsure, show the steps. So most people think about showing the steps, but not with too much of explanation and language. ठीक है, he'll understand. You don't have to teach him. ठीक है, तो सबसे डेंजरस क्या है सीएफए लेवल 3 में? जो सीएफए इंस्टीट्यूट का आंसर्स है. सीएफए इंस्टीट्यूट का आंसर्स इन सीएफए लेवल 3 आर द वर्स्ट. दे हैव कॉपीड द कोर, लंबा लंबा एक्सप्लेनेशन कोर से कॉपी करके, एंड उसके कारण स्टूडेंट को एकदम डिफिडेंस हो जाता है. उसको लगता है मैं तो ये लिख ही नहीं पाऊंगा, और तुम नहीं लिख पाओगे. नोबडी कैन राइट दैट. जो वो लोग का आंसर है वो लिख ही नहीं पाएंगे. अपने को तो क्रिस्प लिखना है, छोटा लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है, डैश 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 लिखना है. जैसे मैं क्लास में नोट्स डिक्टेट करता हूं ना, दैट वे आंसर हैज टू बी रिटन, बट पीपल ट्राई टू मेक सेंटेंसेस. ठीक है, तो अगर वो पूछा है कि शुड वी एलोकेट मोर टू इक्विटी और टू फिक्स्ड इनकम, आंसर है फिक्स्ड इनकम, तो फिक्स्ड इनकम आप लिखोगे वी शुड एलोकेट मोर टू फिक्स्ड इनकम एंड लेस टू इक्विटी. व्हाई आर यू राइटिंग द सेंटेंस? वो पूछा है वी शुड एलोकेट मोर टू इक्विटी और मोर टू फिक्स्ड इनकम. फिक्स्ड इनकम, दैट्स इट. सर फिक्स्ड इनकम के बदले एफआई लिखे तो चलेगा क्या? चलेगा. जो कॉमन शॉर्टकट सब एकदम चलेगा. विल टॉक अबाउट इट मोर एज वी डू इट इन द क्लासेस. सो दैट इज द पॉइंट रिगार्डिंग सीएफए लेवल 3 डेंजरस क्यों है. जस्ट 1 सेकेंड,
Let me see if I have anything to share with you. Yeah, level 3 is difficult. Level 3 is dangerous. ये ना, और इसमें मैंने शायद एक क्वेश्चन लिया है क्या? Let's see. Okay, I have taken a question over here. So let's try this question, all of you. The Prometheo University Scholarship Endowment. तो जब एंडाउमेंट का एग्जाम्पल आता था क्लास में L1 L2 में, आई यूज टू टेक द भवानीपुर यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल, ठीक है ना? तो द कॉलेजेस यूनिवर्सिटी हैव एंडाउमेंट्स टू प्रोवाइड स्कॉलरशिप, वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1950. इसी को तो ट्रम्प कम कर रहे हैं स्कॉलरशिप को. ही हैज डन सिग्निफिकेंटली इन दैट डायरेक्शन. Doesn't want to provide scholarship and support scholarship for students attending Prometheo University. The endowment's assets under management are relatively small, and it has an annual spending policy of 6% of the 5-year rolling asset value. Don't have to apply your brain. Endowment का दो ही objective होता है. Number 1, to meet the spending. Number 2, to preserve capital. That means to earn inflation. तो endowment का objective होता है to meet the spending and to earn inflation. तो ये क्या पूछा है? Formulate the investment objective section of the investment policy statement for the endowment. तो जो IPS है ना, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट, उसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव फ्रेम करना है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्नॉलेज दैट वी हैव नॉट डन दिस. हमने इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट लेवल 3 में पढ़ा नहीं है. लेवल 1 का कुछ आइडिया है. हमने इंडाउमेंट पढ़ा नहीं है, ठीक है? तो इट्स नॉट दैट आई एम गोइंग टू डिवोट अ लॉट ऑफ टाइम इन टीचिंग दिस स्टफ, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट जब वो बोले ना फॉर्मुलेट द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव सेक्शन ऑफ द IPS, तो इसमें जो क्रक्स है वो क्रक्स क्या है? दे आर वांटिंग टू सी दैट आप 3 चीज जरूर लिखो. नंबर 1, द फैक्ट दैट एंडाउमेंट का जो मिशन है, विजन है, दैट मिशन और विजन इज टू सपोर्ट स्कॉलरशिप. नंबर 1. नंबर 2, उसका जो टाइम हॉराइजन है वो लॉन्ग टर्म है, परपेचुअल है. नंबर 3, उसका जो रिटर्न अर्न करना है, दैट इज द स्पेंडिंग रेट ऑफ 6% प्लस एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन टू प्रिजर्व कैपिटल. ओके, रियल वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो प्रिजर्व करना. 3 चीज का मार्क्स है. सर मिशन क्या है इसका? स्कॉलरशिप प्रोवाइड करना. सर टाइम होराइजन क्या है? लॉन्ग टर्म, परपेचुअल. नंबर 3 सर इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न टारगेट क्या है? जो स्पेंडिंग रेट है 6% प्लस द एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन टू प्रिजर्व ओके कैपिटल. ये 3 चीज आपने लिखा, आपको फुल मार्क्स मिलेगा. लुक एट द इंस्टीट्यूट्स आंसर. The mission of Prometheo University Endowment is to provide scholarship for students attending the university. In order to achieve the mission, endowment must maintain the purchasing power of the assets in perpetuity while achieving investment returns sufficient to sustain the level of spending necessary to support the scholarship. Therefore, the investment objective should be to achieve a total real rate of return of at least 6% with a reasonable level of risk. ठीक है? Concise answer. Achieve a real return greater than equal to 6% to support the spending rate and preserve purchasing power of the endowment in perpetuity with moderate risk level. क्या ये जरूरी है आपको एग्जैक्टली कंसाइज आंसर ये लिखना पड़ेगा? नहीं. सपोज मैं आंसर क्या लिख रहा हूं सुनना एग्जाम में. फर्स्ट बुलेट, मिशन टू सपोर्ट स्कॉलरशिप. सेकेंड बुलेट, टाइम होराइजन लॉन्ग टर्म परपेचुअल. थर्ड बुलेट, रिटर्न टारगेट the spending rate of 6% plus expected inflation to preserve purchasing power of the portfolio. So I can write it in whatever format. Format doesn't matter. Understood? So I was just trying to show कि कैसे अपना टाइम बचा सकते हैं. इसलिए मैंने एक बार बोला था डायलॉग, हिंदी में सोचना है, इंग्लिश में लिखना है. जो ही पर्सन ये फॉलो करता है वो कंप्लीटली सक्सेसफुल होता है. जितना इंग्लिश खराब उतना बढ़िया. आई एम जोकिंग, but obviously English बढ़िया है तो why won't you write properly? But in case you think that you are not able to draft properly, it doesn't matter at all. ठीक है ना? So that was why level 3 is dangerous. Level 3 dangerous क्यों है? ठीक है? इसके लिए हम लोग करते क्या? इसके लिए अपने graded sessions होते हैं 3 months before the exam. इस बार 1st of December से there will be graded sessions. Let me in fact show you how the graded sessions take place. So if you look at this, this is the announcement that's going to take place for the graded sessions. 1st December से start हो रहे. तो 1st December सबसे पहले we have topic wise constructive response, derivative का, equity का, economics का, performance measurement का, portfolio construction का, fixed income का. उसके बाद we have item set test series.
तो ये आइटम सेट वाला टेस्ट होता है, तो इजी है लेवल 2 वाला स्टफ। उसके बाद वी हैव ग्रैंड फिनाले, जहां पे वी हैव 4 मॉक्स, एसएससीआई का मॉक 1, एसएससीआई का मॉक 2, सीएफएआई का मॉक 1, सीएफएआई का मॉक 2। So all these are graded by me, and people who have taken the mocks, we have seen, जो लोग अच्छे से मॉक्स अटेम्प्ट किए हैं उनका एग्जाम का परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सर्टेन हो जाता है, बिकॉज उनको पूरा पता है यार 1 दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट करना है, कम से कम डेरिवेटिव का, जिससे डेरिवेटिव का मॉक्स दे पाए, फिर इक्विटी का मॉक्स दे पाए। एंड आई माई सेल्फ चेक द पेपर्स। और चेकिंग केवल वैसे नहीं होता मार्क्स दे दिए, एक एक लिखा रहता है कमेंट, कहाँ पे आपका मार्क्स कटा है, कहाँ पे आप बढ़िया से लिख सकते थे आंसर, कहाँ पे आपने इनएफिशिएंट लिखा है, कहाँ पे आपने डाइवर्ट किया है, कहाँ पे आपने फैक्ट्स रिपीट किया है। ओके, ये सारा का सारा रहता है। ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड। सो दैट वाज अबाउट दिस। फोर्थ है, ऑफ कोर्स अगस्त के लिए भी होगा, दिस इज फॉर द फेब एग्जाम्स। इट हैपेंस एवरी टाइम, अगस्त के लिए तो और ज्यादा मॉक्स होंगे। मतलब अभी इस बार फ्रेश मॉक्स होने वाले हैं 1 दिसंबर से, दे आर गोइंग टू फ्रेश मॉक्स। जो पास्ट मॉक्स हैं उनको सबको हटा दिए हम लोग, वो अपने क्लासेस में यूज करेंगे। वी विल डू फ्रेश मॉक्स दिस टाइम इन फर्स्ट ऑन 1 दिसंबर, एंड उस समय अगस्त के लिए और ज्यादा मॉक्स होगा। नाउ नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू, सीएफए लेवल 3 का 20 to 25% कंटेंट लेवल 1 से पूरा का पूरा रिलेटेड है। सीएफए लेवल 3 का 20 to 25% कंटेंट लेवल 1 से पूरा का पूरा रिलेटेड है, पूरा का पूरा। आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, बिलीव मी। सीएफए लेवल 3 लेवल 1 लेवल 2 के नॉलेज से बहुत जोर से पिकअप करता है, और खासकर लेवल 1। लेट मी सी हाउ योर लेवल 1 का नॉलेज इज विद द हेल्प ऑफ अ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन के हेल्प से देखते हैं आप कैसा परफॉर्म करते हैं। Level 3 is lot more sensible. Okay, here we have. चलो, लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन। ये आप लोग का टेस्ट स्टार्ट हो गया। इट इज लेवल 1 स्टफ। So we have a person called Merabet, who is the investment advisor of some company, the defined benefit pension plan, which is based in a developed country. The current asset allocation is 65% domestic equity, 35% domestic fixed income. तो होम बायस लग रहा है पहला तो। द प्लान यूजेस एन एसेट ओनली इन्वेस्टमेंट अप्रोच एंड इज ओवरसीन बाय रिस्क एवर्स बोर्ड। जस्ट फॉर नॉलेज पर्पस, एसेट ओनली इन्वेस्टमेंट अप्रोच का उल्टा होता है लायबिलिटी ड्रिवन, जहां पे लायबिलिटी पे फोकस करते हैं एंड वी मैनेज द एसेट्स टू मीट द लायबिलिटीज। इट हैपेंस इन बैंक्स। द न्यूमेरिकल risk aversion level for the board is estimated to be equal to 6 on a scale of 1 to 8. तो रिस्क एवर्जन का लेवल जो है ना वो 6 है, वे 8 represents the highest degree of risk aversion, तो काफी फट्टू है 6। Merabet advises the board that risk return profile of the portfolio could be improved by adding non-domestic equity and bond. Some members of the board believe that the portfolio selection should focus on maximizing expected utility, but others think that shortfall risk is more important. The board uses Roy's safety first criterion, नाम तो सुना होगा, as a measure of shortfall risk, and has specified a minimum return threshold of 5%. The risk-free rate is 2%. Minimum threshold return 5%, RF 2%. In presenting her case for diversification to the board, Merabet provides the expected return and standard deviation of 2 global portfolios shown in Exhibit 1. बाद में आएंगे। First question. Determine which portfolio the board should select based on expected utility. Justify your response. कोई बताएगा expected utility का क्या फॉर्मूला था? CFA लेवल 1 में expected utility का एक फॉर्मूला था। CFA लेवल 1 में expected utility का एक फॉर्मूला था। Anyone please? CFA लेवल 1 में expected utility का एक फॉर्मूला था। The expected utility is expected return minus half into A into sigma square. It is
expected return minus half into A into sigma square. I'm not able to use the screen properly. Okay, please excuse me for that. So ये पोर्टफोलियोज था ना कहां पे? ओ इन दोनों का पूछा है क्वेश्चन, क्या पूछा है? Which portfolio should it select based on expected utility? Justify your response. तो ये रहा 6.5 माइनस हाफ इंटू 6 इंटू 10 स्क्वायर, डेसिमल में लेना है बिकॉज रिस्क एवर्जन 6 था ना, तो हाफ इंटू 6 इज 3, तो 6.5 माइनस 3 इंटू 10% स्क्वायर, तो 0.1 स्क्वायर इंटू 3 और 0.065 में से लेस होगा, समझ गए? 0.065 माइनस 3 इंटू 0.1 स्क्वायर, और यूबी का 0.075 माइनस 3 इंटू 0.135 स्क्वायर, जो भी आता है. You can understand it's a simple question. Expected return minus half into A into sigma square. A is the level of risk aversion. तो A 6 दिया हुआ था, रिटर्न और SD दिया हुआ है, डेसिमल में पुट करना है, यूटिलिटी निकालना है. हो सकता है याद नहीं हो L1 का, बट यू हैव टू एडमिट दैट इससे सिंपल क्वेश्चन क्या होगा, लेवल 1 में ये 1 मार्क्स का आता, लेवल 3 में ये हो सकता है 6 मार्क्स का आ जाए, या 4 मार्क्स का आ जाए, या 2 मार्क्स का आ जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन, तो वही किया है देखो. इनकेस फॉर्मूला किसी को समझ में नहीं आ रहा था, यूटिलिटी इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस हाफ के बदले 0.005 आ गया. स्ट्रेंज. वन हैज टू चेक मिस प्रिंटिंग है क्या है. आई विल चेक व्हाइल शेयरिंग द फाइल विथ यू. Determine which portfolio the board should select based only on Roy's safety first criterion. So Roy's safety first criterion was same as the Sharpe ratio, expected return minus threshold return divided by SD. Sharpe में तो RF लेस करते हैं ना, इसमें थ्रेशोल्ड मिनिमम R min लेस करते हैं. एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस R min डिवाइडेड बाय SD. समझ रहे हो? तो R min 5% था, तो इसका क्या आया फर्स्ट वाले का? फर्स्ट वाले का आ गया 6.5 माइनस 5, 1.5 डिवाइड बाय 10, 0.15. सेकेंड वाले का 7.5 माइनस 5, 2.5 डिवाइड बाय 13.5. Understood? Roy's safety first criterion, just like Sharpe ratio, but instead of RF, we deduct R min, the threshold level of return. Once again, it should be 1 marks question in level 1. It would be 2 or 3 marks question at level 3. और ये पास्ट पेपर्स 2014 में आए हुए, 2014 जब मोदी जी आए थे. Okay, this was the formula in case somebody was not getting it. Next. Margaret is advising another client, the Edu Fund Endowment, on adding non-domestic assets to its portfolio. तो अभी तक डोमेस्टिक में इन्वेस्ट करते हैं ना, नॉन डोमेस्टिक में इन्वेस्ट करने का बात हो रहा है. द एड्यू फंड एंडाउमेंट इज बेस्ड इन द सेम कंट्री एज द पेंशन प्लान. द एसेट एलोकेशन ऑफ द एंडाउमेंट इज 60% डोमेस्टिक इक्विटी एंड 40% डोमेस्टिक फिक्स्ड इनकम. अभी तो 65-35 बोला था, अचानक से चेंज कर दिया. स्टार्टिंग में तो 65-35 बोला था. So I will have to just check the answer question while sharing with you. The current asset allocation is पेंशन प्लान का था ना ये, और नीचे किस चीज का है? इंडाउमेंट का है क्या? वो नया, ये तो इंडाउमेंट का है, दूसरे का है, सॉरी. ठीक है. द एसेट एलोकेशन इज 60% equity and 40% fixed income right now. The current portfolio has an expected return of 6.25%, standard deviation 9.5%. Marabit is evaluating 2 new asset classes that might provide a mean variance improvement for the endowment. She provides the endowment trustees with the data shown in Exhibit 2. देखो, तो नॉन डोमेस्टिक इक्विटी का एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया है, एसडी दिया है, रिटर्न एसडी दोनों हाई है, कोरिलेशन 0.7 है विद द करंट पोर्टफोलियो. इमर्जिंग मार्केट इक्विटी का, ओके, इमर्जिंग मार्केट इक्विटी का 9% है, एसडी 18% है, 0.5 कोरिलेशन है. क्वाइट स्ट्रेंज लैंग्वेज. नॉन डोमेस्टिक डेवलप्ड मार्केट इक्विटी हो, पहला डेवलप्ड मार्केट इक्विटी है, फिर इमर्जिंग मार्केट इक्विटी है. The correlations provided in Exhibit 2 reflect normal market conditions. Marabit believes that the use of conditional return correlation is valuable in stress testing. तो आप स्टोरी समझ गए. हम लोग हिदर टू केवल डोमेस्टिक में लगाते हैं, हमारा रिटर्न 6.25 है, एसडी 9.5 है, एंड नाउ वी आर थिंकिंग अबाउट मूविंग इनटू नॉन डोमेस्टिक इक्विटी, ईदर डेवलप्ड और इमर्जिंग. उसका रिटर्न एसडी और कोरिलेशन दिया विद द एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो. लेट्स लुक एट द क्वेश्चन. Determine if adding non-domestic developed market equity would provide a mean variance improvement for the current endowment portfolio.
Determine if adding non-domestic developed market equity would provide a mean variance improvement for the current endowment portfolio. How will you do this? How will you do this? If adding non-domestic developed market equity would provide a mean variance improvement for the current endowment portfolio. Let me see who answers. Anybody who wants to answer, they can raise their hands. I will allow them to speak. You have to tell me the process. Anybody who wants to answer, they can raise their hands. I will allow them to speak. क्या नॉन डोमेस्टिक डेवलप्ड मार्केट इक्विटी को ऐड करने से पोर्टफोलियो का मीन वेरिएंस एफिशिएंसी इंप्रूव होगा? दैट्स व्हाट दे आस्क्ड. कैसे चेक करेंगे? Ankit Chaudhary is wanting to answer. Okay. So let me go to Ankit Chaudhary. Just 1 second. Yes, Ankit, you can answer now. You can unmute and answer. आपको अपने आप को अनम्यूट करना पड़ेगा अंकित in case you want to Sir, answer. because the diversification benefit, डिटरमाइन करना नंबर्स दिया हुआ है. sir, actually the item set is not visible. That is, डजंट मैटर, तुमको नंबर्स नहीं यूज करना है, प्रोसेस बताना है. sir, I have to take out the ER. ईआर दिया हुआ था. करंट पोर्टफोलियो का भी ईआर और एसडी दिया हुआ था. जो नॉन Sir, डोमेस्टिक whichever higher ER, so sir, like whichever portfolios, so sir, like whichever portfolios are having the higher ER will be the, so like we will go with that portfolio. Okay, there's a confusion going on. Let me show you the screen. Here is the screen. Here is the data. अपना जो करंट एलोकेशन 60-40 है, एक्सपेक्टेड रिटर्न इज 6.25%, एसडी इज 9.5% करंटली. और जो नॉन डोमेस्टिक डेवलप्ड मार्केट इक्विटी केवल उसी से मतलब है, उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न हायर है, 8% है, स्टैंडर्ड डिविएशन भी हायर है, 14% है, कोरिलेशन 0.7 है. क्वेश्चन क्या पूछा, एक बार क्वेश्चन दिखा देता हूं. Determine if adding non-domestic developed market equity would provide a mean variance improvement for the current endowment portfolio. Justify your response. I think you are able to speak. Ankit, are you able to? Sir, emerging market equity would be the answer. पर ये क्वेश्चन पूछा नहीं है, देखो ये आप तो डाइवर्ट कर रहे हो. वो पूछा है डिटरमाइन इफ एडिंग नॉन डोमेस्टिक डेवलप्ड मार्केट इक्विटी वुड प्रोवाइड अ मीन वेरिएंस इंप्रूवमेंट. आप लोग समझना सब जन जो सुन रहे हो. इफ द क्वेश्चन इज सेइंग क्या नॉन डोमेस्टिक डेवलप्ड मार्केट इक्विटी से मीन वेरिएंस इंप्रूवमेंट होगा, एंड सपोज अंकित आंसर लिख के आता है इमर्जिंग मार्केट इक्विटी इज एडवाइजेबल, देन दैट के 0 मार्क्स है. Sir, because sir, actually, so it will improve. Sir, because its SD is low as compared to the emerging market equity. 0 मार्क्स है. Okay, sir. 0 मार्क्स है. मैं एक बार वापस से स्क्रीन शेयर स्टॉप करके देख रहा हूं, कोई और आंसर करना चाहता है क्या? जस्ट 1 सेकेंड. कुणाल केडिया इज कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कैलकुलेट कैसे करें, क्या कैलकुलेट करें, आपको बताना पड़ेगा. अंकित अपने आप को म्यूट कर लो. एनीबडी एल्स वांटिंग टू आंसर कैन रेज देयर हैंड्स. यू कैन ट्राई, देयर इज नो एम्बैरेसमेंट ट्राई करने में. Sir, calculation तो I don't remember, but the answer would be that since for non-domestic equity market, since the return and SD both are higher as compared to the existing portfolio, and correlation is less than 1, so it will help in improving the return. यू डोंट गेट मार्क्स. कोई मार्क्स नहीं मिलेगा. और कोई? अंशुल गुप्ता. Yes, sir. यस बोलिए.
हाँ सर। सर इसमें हम लोग को वेट्स निकालना पड़ेगा, डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट्स अपने को मिल रहा है कि नहीं, एंड मतलब कितना वेट्स हम लोग एलोकेट करें, एंड मेरे को ठीक से नहीं ध्यान आ रहा है, बट ऐसे लग रहा है कि पोर्टफोलियोज से ऐड करने से हम लोग को डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट्स मिल रहा है कि नहीं, उसको देख के चेक करके बताना पड़ेगा। नहीं, यू डोंट गेट मार्क्स। ओके ओके। ये डिफिकल्ट एक्चुअली, बिकॉज एक छोटा सा पॉइंट है जो लेवल 1 में लोगों ने बाद में इंट्रोड्यूस किया था। मतलब कब इंट्रोड्यूस किया था बता रहा हूं मैं, 2023 में या 2024 में, 23 में इंट्रोड्यूस किया था। तो जो लोग उस समय किए थे लेवल 1, उस समय जो L1 किए थे, तो मेरा इसमें एक एक्स्ट्रा वीडियो शेयर हुआ था, छोटा सा 15 मिनट का ऐसे शेयर होता है ना जब कुछ चेंजेस आते हैं, उस पोर्शन से था, बता रहा हूं क्या। आई ओके। थिंक पहला दिमाग जो चलना चाहिए था आप लोग का वो ये कि सर शार्प रेशियो निकाल लेते हैं। एक बार चलो साथ में शार्प रेशियो निकालते हैं। स्क्रीन शेयर्ड है क्या अभी तक? नहीं ना? नहीं, एक मिनट। हाँ, चलो शार्प रेशियो निकालते हैं। एग्जिस्टिंग का शार्प रेशियो क्या है? 6.25 माइनस 2, बिकॉज 2 RF था। 4.25 डिवाइड बाय 9.5, 4.25 डिवाइड बाय 9.5। ओके, 4.25 डिवाइड बाय 9.5 इक्वल टू 0.4474। Yes. ये अपना भी शार्प रेशियो है, ठीक है ना। जो नॉन डोमेस्टिक डेवलप्ड मार्केट इक्विटी है उसका भी शार्प रेशियो निकाल ले तो 8 माइनस 2 इज 6, 6 डिवाइडेड बाय 14, शार्प रेशियो इज 0.4286। शार्प रेशियो 0.44 और 0.4286 सबका आ गया होगा, अज्यूम कर रहा हूं। तो क्या दिख रहा है सर? जो नॉन डोमेस्टिक डेवलप्ड मार्केट इक्विटी है उसका शार्प रेशियो कम है। सर जो नॉन डोमेस्टिक डेवलप्ड मार्केट इक्विटी है उसका शार्प रेशियो कम है तो खराब लग रहा है। पर वहीं पे कैच है कि सर कोरिलेशन तो कैप्चर हुआ नहीं। सो रूल क्या है सुनना, whenever you want to include something in the portfolio, you will not compare the Sharpe ratio of that with the Sharpe ratio of the current portfolio. Instead, you will compare the Sharpe ratio of that with the Sharpe ratio of the current portfolio into correlation. तो जो करंट पोर्टफोलियो था ना उसका शार्प रेशियो मेरा आया था 0.4474, उसको इंटू 0.7 करेंगे तो ये आ रहा है 0.3132। तो इफ द शार्प रेशियो ऑफ द addition non-domestic developed market equity is greater than the existing Sharpe ratio multiplied by correlation, in that case yes, the new one will improve the mean variance efficiency of the portfolio. ये L1 का स्टफ है, 100% है अभी लेवल 1 में, और ये अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ इस साल, बिकॉज 25 में कोई चेंज नहीं हुआ, 24 में चेंज नहीं हुआ, 23 में इंट्रोड्यूस हुआ था। बट याद रखना बहुत डिफिकल्ट है बिकॉज छोटा सा चीज था लेवल 1 में एक जगह। तो वेनेवर एक मेरा एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है और मैं नया चीज ऐड करने का सोच रहा हूं, तो मैं नए वाले का शार्प रेशियो को देखूंगा कि वो ग्रेटर होना चाहिए किससे? एग्जिस्टिंग शार्प रेशियो इनटू कोरिलेशन, तब जाके उसको इंक्लूड करते हैं। नॉट एन इश्यू, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था। आप लास्ट क्वेश्चन देखो एंड आई एम श्योर आप लोग आंसर कर पाओगे। लास्ट क्वेश्चन है ये जिसको बाई चांस समझ में नहीं आया मेरे बोलने से, ये कर रहे थे हम लोग। जो नए वाले का शार्प रेशियो 8 माइनस 2 डिवाइड बाय 14 4.429 इज ग्रेटर देन द ओल्ड शार्प रेशियो इनटू 0.7। तो इफ इट इज ग्रेटर देन यस, मीन वेरिएंस इंप्रूव होगा। लास्ट क्वेश्चन राइट होगा, पर राइट में लिखें कैसे वो मन में सोचे। सपोर्ट विथ वन रीजन मार्बरेट्स बिलीफ अबाउट द यूज ऑफ कंडीशनल रिटर्न कोरिलेशन। क्या बिलीफ था एक बार दिखाया था? तो सपोर्ट करना है, वो पूछा नहीं बिलीफ राइट है कि रॉन्ग है, बोला राइट बिलीफ है, सपोर्ट करो। Okay, this was it. Margaret is evaluating two new asset classes that might provide a mean variance improvement for the endowment. She provides the trustees with the data shown below. Correlation provided in Exhibit 2 reflects normal market conditions. Margaret believes that the use of conditional return correlation is valuable in stress testing. Last line. She believes that the use of conditional return correlation is valuable in stress testing. Okay, और क्वेश्चन क्या है लास्ट में? Support with one reason Margaret's belief about the use of conditional return correlation. How will you support? What will you write?
वो बोली या बोला, पता नहीं जेंडर क्या है, कि यस वी शुड यूज कंडीशनल रिटर्न कोरिलेशन फॉर द पर्पस ऑफ स्ट्रेस टेस्टिंग। आई थिंक बहुत जन का आंसर आ गया होगा, पर सब जन बोलेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, तो आप लोग टाइप करके बताओ। हाउ डू यू सपोर्ट द यूज ऑफ कंडीशनल रिटर्न कोरिलेशन? हाउ डू यू सपोर्ट द यूज ऑफ कंडीशनल रिटर्न कोरिलेशन? लेवल 1 का स्टफ है। लेवल 1 से पढ़ा हुआ है। कोरिलेशन स्पाइक्स ड्यूरिंग क्राइसिस, पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ बता देना। कोरिलेशन स्पाइक्स ड्यूरिंग क्राइसिस, कि नॉर्मली जो कोरिलेशन होता है वो होता है, पर क्राइसिस के टाइम पे कोरिलेशन ज्यादा होता है, एक बार में सब कुछ गिरता है। और इस बार तो लगता है वर्ल्ड में गोल्ड भी गिरेगा, जब गिरेगा तो एक बार में। कोरिलेशन स्पाइक्स ड्यूरिंग क्राइसिस, कि क्राइसिस के टाइम पे कुछ नहीं बचता है, एवरीथिंग फॉल्स लाइक अ पैक ऑफ कार्ड्स। तो इन दैट केस वो यही तो पूछा, स्ट्रेस टेस्टिंग। स्ट्रेस टेस्टिंग कब करते हैं? ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ स्ट्रेस, ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ क्राइसिस। ठीक है, ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ स्ट्रेस, ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ क्राइसिस। तो उस समय सबका सब गिरेगा, तो उस समय तो कोरिलेशन हाई हो जाएगा। तो वी शुड नॉट यूज नॉर्मल कोरिलेशंस वाइल स्ट्रेस टेस्टिंग। स्ट्रेस टेस्टिंग मतलब स्ट्रेस सिचुएशन में पोर्टफोलियो का क्या हाल होगा, और उसके लिए आपको कंडीशनल कोरिलेशन यूज करना चाहिए। व्हाट इज कंडीशनल कोरिलेशन? It is an acknowledgement of the fact that correlation does not remain the same. Okay, it varies depending upon the regime. So in a crisis regime, correlation spikes. Look at the answer that they have given, and you'll understand why I am really, really hating the institute for this type of a stuff. Look at the answer that they've given. ये 2014 का एक्चुअल एग्जाम पेपर है, एम का पेपर शेयर होता है सबके साथ। क्या लिखा है? द यूज ऑफ कंडीशनल रिटर्न कोरिलेशन इज वैल्यूएबल इन स्ट्रेस टेस्टिंग बिकॉज correlation tends to increase during periods of market volatility. Traditional mean variance analysis assumes that correlation statistic is constant over time, which the fact is not. Correlation often changes the absolute level of market and or the magnitude of return. Conditional return correlation provides the ability to more accurately evaluate mean variance improvement. You don't have to write so much. There is no need. मेरा आंसर क्या है? Correlation spikes during crisis. Full marks. ओके, क्राइसिस के टाइम पे कोरिलेशन बढ़ जाता है, वी शुड यूज कंडीशनल कोरिलेशन। बट ये नहीं मतलब है कि कहीं पे अगर आपका छोटा लिखा नहीं जा रहा है, यू आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन योर पॉइंट छोटा से, तो क्या करना है? सर छोटा लिखना है कि बड़ा? बड़ा लिखना है। इफ यू आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन योर पॉइंट विथ स्मॉलर सेंटेंस, राइट बड़ा, देयर इज नो इश्यू। चेक योर वॉच एंड राइट बड़ा। ओके, फर्दर just moving ahead into the stuff. Okay, I have to show you something. Now, how are the classes organized and how is it going to take place? तो ये कोडिंग शीट है, जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है शायद वो कोडिंग शीट मिल गया होगा उन लोग को। दिस इज द कोडिंग शीट यू विल फाइंड। ओह सॉरी, उसके पहले सिलेबस डिस्कस करना था। एक मिनट, लेट मी मिनिमाइज दिस एंड कम टू द सिलेबस पार्ट। Okay, have a look. This is the CFA level 3 ka curriculum. So you are aware that there is something called common core, which is the left hand side. Asset allocation, portfolio construction, performance measurement, derivatives, ethics. Okay. That is the common core. And on the right hand side, you have 3 pathways. Portfolio management pathway, जिसमें इक्विटी, फिक्स्ड इनकम सबके अंदर घुसते हैं, कि इक्विटी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इन डिटेल, फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इन डिटेल। ठीक है। प्राइवेट मार्केट्स पाथवे, जिसमें भी गेट इनसाइड
प्राइवेट इक्विटी, प्राइवेट डेट, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, माने पूरा का पूरा ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट सोचो उसको खोद रहे। एंड थर्ड वन इज प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट पाथवे। प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट पाथवे इज डिगिंग इन साइड RRTT LLU। ओके, उस पार्ट के अंदर घुसना। तो दीज आर द थ्री पाथवेज। इफ यू आस्क मी सर, इन तीनों पाथवे में से किसका इंडस्ट्री में डिमांड जोर का है, विच वन है ग्रेट स्कोप राइट नाउ? आंसर है ऑल द थ्री। ऑल द थ्री हैव अ ग्रेट स्कोप, ग्रेट फ्यूचर। ऑफ कोर्स सबसे ज्यादा AUM इज कलेक्टेड बाय द नॉर्मल इक्विटी एंड फिक्स्ड इनकम गाइस, बट ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट भी इंडिया में जोर से बढ़ रहा है। एंड प्राइवेट वेल्थ इंडस्ट्री, द लाइक्स ऑफ 360 डिग्री, नुवामा वेल्थ, HDFC वेल्थ, ICICI वेल्थ, सैंक्टम वेल्थ, जूलियस बेयर, दे ऑल आर दे। बट एक चीज बता दूं, प्राइवेट वेल्थ में किसी को भी अपना करियर बनाने का नहीं सोचना चाहिए जिसको लगता है वो एक्सट्रोवर्ट नहीं है, जिसको लगता है उसका कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़िया नहीं है। माने दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे आई एम टेलिंग यू। जैसे मैं फॉर एग्जांपल माई सेल्फ, आई विल नेवर गेट इनटू प्राइवेट वेल्थ, बिकॉज प्राइवेट वेल्थ में आपको क्लाइंट का ऑयलिंग करना है। यू डोंट लाइक इट, आई रिपीट, प्राइवेट वेल्थ में आपको क्लाइंट का ऑयलिंग करना है। इट्स अ सेल्स का जॉब। यस इट इज, पीपल विल कवर इट, नो नो नो, वी डू, क्या बोलते हैं, रियल, वी डू स्टेट प्लानिंग, वी डू कॉन्सेंट्रेटेड। इट इज अल्टीमेटली क्लाइंट का ऑयलिंग करना। आपको ह्यूमन बींग्स को स्टडी करना, उनके बायसेस को स्टडी करना है, उनका जी हजूरी करना है। आई एम नॉट सेइंग इट इज डिग्रेडिंग, इट बिल्ड्स अ ग्रेट करियर। कुछ कुछ लोग होते हैं जिनमें वो कैलिबर ऐसा, आई एम अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन इंस्टिंक्ट, मेरे को वो पसंद है, आई हैव द सॉफ्ट स्किल्स, तो प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट इज फॉर देम। एनीबडी हु इज वेरी सोफिस्टिकेटेड, ठीक है, माने दे वुड check twice before going for private wealth management pathway. I am not discouraging. Now, the second drawback of private wealth management pathway is that private wealth management pathway का जो write up है, that is very, 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 very elongated. इतना टाना है, बाप रे बाप, नींद से सो जाओगे। उसके बाद भी अगर कोई स्टूडेंट प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट पाथवे चुनता है, तो हम लोग प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट पाथवे का जो मेरा पुराना क्लासेस है, जिसमें टैक्सेस एंड रियल एस्टेट, टैक्सेस एंड स्टेट प्लानिंग, कॉन्सेंट्रेटेड सिंगल एसेट पोजीशन, स्टेट प्लानिंग, वो पूरा का पूरा क्लासेस उसको मुफ्त का अवार्ड करेंगे। डोंट हैव टू वरी, ओके, वी विल शेयर विदाउट एनी चार्जेस द प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट का क्लासेस, बिकॉज दे आर देयर विथ मी, इट्स ऑलरेडी देयर। तो सब मुफ्त का क्यों दे रहे हैं? बिकॉज मैं उसमें वापस से अभी दिमाग लगाने वाला नहीं हूं। इफ समबडी आस्क्स द डाउट्स ऑन द सेम, आई विल नॉट एंटर दैट डाउट एट ऑल। ठीक है, प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट पाथवे इज फ्रीली अवेलेबल फ्रॉम SSCI। इट कवर्स ऑल द चैप्टर्स ऑलमोस्ट। ठीक है, नाउ वी कम टू द अदर टू, प्राइवेट मार्केट पाथवे, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पाथवे। नाउ जेन्युइनली आई बिलीव दैट जो कोई स्टूडेंट है आप में से हु इज देयर इन द प्राइवेट मार्केट, जो प्राइवेट इक्विटी में ही है, होना है नहीं बोल रहा हूं, जो है प्राइवेट इक्विटी में, ओके, जो वेंचर कैपिटल में है, जो स्टार्टअप में काम कर रहा है, ओके, जो उसी इंडस्ट्री में है, तो फिर उस केस में वो स्टूडेंट प्राइवेट मार्केट पाथवे ले सकता है। बट ऐसे कम स्टूडेंट्स होते हैं, बिकॉज स्कोप इज लेस इन दैट सेक्टर। यूजुअली जो लोग पब्लिक मार्केट्स में एक्सपीरियंस्ड होते हैं ना, वो लोग प्राइवेट मार्केट्स पे जाते हैं, ऐसा मेरा देखा हुआ है। जो लोग पब्लिक मार्केट्स पे एक्सपीरियंस्ड होते हैं, दे वो गो टू द प्राइवेट मार्केट्स। प्राइवेट मार्केट में डायरेक्टली कमती लोग जाते हैं। Therefore, I have a limited amount of energy, and therefore I have not been able to devote, nor will I be able to devote in the next 1 year into private market pathway, which is my next target. वैसे हो सकता है 2027 में, ठीक है। I am going to teach only the portfolio management pathway, ठीक है। तो you may have a conflict of interest के साथ, since आप portfolio management pathway करवा रहे हैं, therefore आप portfolio management pathway recommend कर रहे हैं। You can take it that way, but that's the way it is. I gave you my reasons for the same, ठीक है। It depends upon whether you are comfortable with that reason, but then you have your own thing. Common core is there, and then you have to choose one of the three pathways. मेरे ख्याल से portfolio management should be chosen. सर पर मेरे को बाकी तीन दोनों pathway का भी knowledge चाहिए था, वो allowed है। CFA Institute allows you to study all the three pathways. ठीक है, there is no problem whatsoever. But exam wise, portfolio management is what we recommend. Now, having said that, let me come back to this stuff. Just 1 second.
Okay, so I was showing you अपना क्लासेस कैसे होगा. So as you see over there, 3 टैब दिया हुआ है: कॉमन कोर, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पाथवे एंड ऑप्शनल. कॉमन कोर, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पाथवे एंड ऑप्शनल. ऑप्शनल क्या होता है बताऊंगा बाद में, पहले कॉमन कोर. कॉमन कोर में दीज आर द टॉपिक्स जो वहां सिलेबस पे दिए हुए थे. एंड इसमें अपने को टोटल जो अभी प्री रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल है उसमें 147 आवर्स है. 147 आवर्स ऑफ प्री रिकॉर्डेड क्लासेस आर देयर. ओके, 147 आवर्स, जो कि आपको बहुत ही मामूली लग रहा होगा. ठीक है, गिवन योर पास्ट एक्सपीरियंस. पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पाथवे में 52 आवर्स है. तो 147 प्लस 52, यू हैव 205 आवर्स ऑफ क्लासेस. 205 घंटे की क्लासेस है. सर पर आप तो लाइव क्लास लेने वाले हैं. यस, पर जो लाइव क्लासेस है दे विल बी अ रिप्लेसमेंट ऑफ दीज क्लासेस. जैसे 1 नवंबर से आई एम गोइंग टू टेक क्लासेस फॉर फिक्स्ड इनकम. 1 नवंबर से आई विल टेक क्लासेस फॉर फिक्स्ड इनकम. सो अकॉर्डिंगली स्टूडेंट से एडवाइज्ड है कि आप फिक्स्ड इनकम से स्टार्ट नहीं करें. इन केस यू वांट टू वेट फॉर मी, यू मे नॉट स्टार्ट विद फिक्स्ड इनकम. ठीक है, तो फिक्स्ड इनकम से यू मे नॉट स्टार्ट. अभी जैसे कैपिटल मार्केट एक्सपेक्टेशंस का मेरा क्लास चल रहा है, 9 क्लासेस हुआ है. 9 क्लास डरो मत, ये छोटे छोटे क्लासेस है. 1 आवर 45 मिनट्स, 1 आवर 45 मिनट्स, इसलिए नंबर ऑफ आवर्स कमती कमती है. ठीक है, तो यू में जो भी लाइव क्लास होगा वो सब्सटीट्यूट होगा ऑफ द क्लासेस ऑलरेडी अपलोडेड. ठीक है, सो सर व्हाट शुड बी स्टार्ट विथ? बिलीव मी, यू शुड स्टार्ट विथ दिस. ये जो मैंने लिखा है ना उसी ऑर्डर में स्टार्ट करना चाहिए. स्टार्ट विथ एसेट एलोकेशन. एसेट एलोकेशन से स्टार्ट करो. मूव इनटू कैपिटल मार्केट एक्सपेक्टेशंस, देन मूव इनटू ऑप्शन स्ट्रैटेजीज. बट सर मेरे को दो दो टॉपिक से स्टार्ट करना है, तो इन दैट केस डेरिवेटिव से स्टार्ट कर दो और एसेट एलोकेशन से स्टार्ट कर दो. ठीक है, देन मूव इनटू पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन एंड सो ऑन. समझ गए? मैं अभी जो चालू करूंगा 1 नवंबर से क्लासेस, वो मैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पाथवे से स्टार्ट करने वाला हूं. आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द फिक्स्ड इनकम सेक्शन. ये फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से आई स्टार्ट. समझ गए? सो दैट इज हाउ द क्लासेस आर देयर. अपना 2 क्लासेस पर वीक होगा, 2 क्लासेस पर वीक. ठीक है, दिस विल इंश्योर इंटरैक्शन बिटवीन अस, दिस विल इंश्योर क्वेश्चन सॉल्विंग बिटवीन अस, दिस विल इंश्योर सम ऑफ द टॉपिक्स बिकम फ्रेश एंड रिवाइज्ड. ठीक है, क्लासेस वैसे कोई पूरा का पूरा प्री रिकॉर्डेड करना चाहे वो कर सकता है. ठीक है, और मॉक सेशंस ग्रेडेड होता है. सो दिस इज आई थिंक द एंटायर स्टफ आई वांटेड टू शेयर विथ यू ऑल. एनी डाउट्स दैट यू हैव, यू कैन आंसर, यू कैन क्वेश्चन. किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है. ओ व्हाट इज ऑप्शनल? ऑप्शनल में बेसिकली नाइला खान इज आस्किंग ऑप्शनल क्या. ऑप्शनल में क्या है बता रहा हूं. देखो, जैसे मैं बिलीव करता हूं ओल्ड इज गोल्ड. आई डोंट नो यू बिलीव इट और नॉट. कुछ कुछ मेरी जो पुरानी क्लासेस है ना, बहुत पुरानी, उनमें बहुत टान के कोई टॉपिक पढ़ाया हुआ है. तो इफ सम स्टूडेंट गेट स्टक अप इनटू समथिंग, जैसे हम लोग लेवल 3 में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, बट कभी कभी कोई स्टूडेंट को अनकंफर्टेबल होता है कोई टॉपिक से, तो हमने एकदम पुराना वाला क्लासेस भी शेयर कर दिया है कि भाई तुम इससे सुन ले. उस समय और धीरे धीरे कराया हुआ है. तो मेरे को लगता नहीं ऑप्शनल क्लासेस का रिक्वायरमेंट होगा. नहीं देखना चाहिए. लेवल 3 में आपका टाइम जाना चाहिए इनटू प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्वेश्चन सॉल्विंग, इनटू एप्लीकेशंस. लॉट ऑफ यूज ऑफ जीपीटी, लॉट ऑफ यूज ऑफ जेमिनाई और परप्लेक्सिटी शुड बी डन. आपको जहां लगता है बोरिंग, नींद आ रहा है, वहीं पे आपको स्टफ को डाल के बोलना चाहिए प्लीज डिजाइन एन आइटम सेट टू टेस्ट माई अंडरस्टैंडिंग ऑन सीएफए लेवल 3 का. तो इट विल डिजाइन क्वेश्चन हाउ टू आंसर इट इन अ कंसाइज मैनर. जीपीटी से पूछो. अंकित चौधरी कुछ और ही पूछ रहे हैं. अंकित, वो मैं प्राइवेटली रिप्लाई कर पाऊंगा तुमको. अत्रेया कुंडू, अप्रॉक्स मंथ फॉर द ग्रेडेड टेस्ट फॉर द अगस्त बैच. 3 मंथ्स के पहले निकलता है. तो अगस्त के लिए जैसे अभी फेब में एग्जाम है ना, जैन दिसंबर 1 दिसंबर, तो अगस्त के लिए अगस्त पे एग्जाम है. तो जुलाई जून, 1 जून या 1 मई से स्टार्ट करेंगे. 1 जून या 1 मई से स्टार्ट करेंगे. हो सकता है 1 मई से कर दे, इन केस में को लगा सबका प्रेपरेशन बहुत सॉलिड है. विच सब्जेक्ट क्लासेस आर रिसेंटली टेकन? अभी कैपिटल मार्केट एक्सपेक्टेशंस का 9 क्लासेस हुआ है, 3-4 और क्लासेस होगा. दे आर द वंस विच आई हैड रिसेंटली टेकन. उसके पहले मैंने लिया था ये प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट, चेंज हुआ था. उसका एक चैप्टर है ना, क्या नाम है मेरे को नहीं पता, प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट. ऑल्दो पाथवे है पर उसका एक चैप्टर सिलेबस के अंदर है, उसका चेंज हुआ था, तो वो मैंने लिया था रिसेंटली. उसके बाद
प्राइवेट वेल्थ के पहले आई थिंक फिक्स्ड इनकम लिया था चैप्टर 1, तो फिक्स्ड इनकम का चैप्टर 1 वापस से नहीं पढ़ाने वाला हूं. Yes, yes, everybody can opt for personal graded mock test. Personal graded mock tests are open for everyone. Even if somebody doesn't want to take my classes, they want to go only for personal graded mock test. Definitely welcome. लेवल 3 में नंबर ऑफ आवर्स कम है, क्यों कोई पूछ रहा है? बिकॉज लेवल 3 में इट सीम्स टू बी अ सिन. अगर उतना आवर्स टान टान के कराते हैं तो आई नो सम पीपल विल से नहीं सर वो बेटर है, बट नो, आई एम टेलिंग यू, मोस्ट पीपल स्टार्ट वर्किंग, कोई ना कोई जॉब में लग जाते हैं, स्ट्रेसेस बढ़ जाता है, वो बोलने में आसान है बट इट डजंट हैपन. तो लेवल 3 में यू नीड टू सेव आवर्स एंड यू नीड टू सिट ऑन द ड्राइविंग सीट योरसेल्फ. यू नीड टू बिहेव मोर लाइक अ लीडर rather than a follower. Classes will be on weekend or weekdays and timing. क्लासेस का प्लान तो वीकेंड का ही है. क्लासेस का प्लान वीकेंड का ही है, सैटरडे संडे शाम को. दैट इज द प्लान फॉर द क्लासेस. संडे को सुबह भी कर सकते हैं, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होगा. सौरभ संका ने क्या बोला? आई मिस्ड आउट. If somebody opts for private market pathway, will the personal graded mock test be? No. Our personal graded mock tests are only for the portfolio management pathway, because I'm not in touch with the stuff in private market pathway, so I will not be able to do justice with it. So the graded sessions are only for the portfolio management pathway. पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पाथवे का स्कोप क्या और क्या जॉब्स है, जो भी अपने जानते हैं वो सारा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पाथवे है. फॉर एग्जाम्पल, यू वांट टू ज्वाइन एज एन एनालिस्ट इन अ सेल साइड और अ बाय साइड, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पाथवे इक्विटी का डीप एनालिसिस है. यू लेटर ऑन प्लान टू स्टार्ट अ पीएमएस, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, आरए का एग्जाम देंगे. यू वांट टू बिकम रिसर्च एनालिस्ट, यू मूव टुवर्ड्स बिकमिंग अ फंड मैनेजर. वो सारा का सारा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पाथवे है. पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में जो लोग एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं 10 साल वगैरह, वो लोग प्राइवेट में जाते हैं, बिकॉज प्राइवेट इंडस्ट्री में एक्सेप्टेबल ही नहीं होता है वो लोग. अब किसी का कोई लिंक है, प्राइवेट में ले लिया आपको एज एन इंटर्न या जो भी है, वो एक अलग बात है, बट अदरवाइज यूजुअली करियर डजंट स्टार्ट विद प्राइवेट पाथवे, माने प्राइवेट मार्केट्स. यहाँ पे जनरली स्टार्टिंग ऑफ द करियर का बात है, बट देयर कुड बी सम एक्सेप्शन, सम पीपल who are already maybe in their mid 40s and who are working in the private space. So obviously you should choose the private pathway. अवधेश, so one more question, ethics की क्लासेस लेनी है या वही डायरेक्ट क्वेश्चन में जाना है लेवल 2 की तरह? नो, एथिक्स की क्लासेस किसी को बहुत प्रेम आ रहा है, तो मैंने 8 साल बाद एथिक्स की क्लासेस ली है लेवल 1 में, नहला दिया है वो लोग को. कोई चाहे तो वो सुन सकता है, हमने ऐड कर दिया उसको, बट मेरे ख्याल से बहुत पेनफुल होगा, सह नहीं पाओगे. बट फ्रेशर्स के लिए जो एथिक्स का क्लासेस लिया था अभी, ओ गॉड, मैंने जीपीटी सपोर्ट में था ना, तो ऐसा बढ़िया क्लासेस हुआ, कोई लिमिट नहीं था. सर, इफ अ स्टूडेंट वांट्स टू गो फॉर प्राइवेट मार्केट स्पेशलाइज्ड पाथवे, कैन यू सजेस्ट सम अदर? आई कैन नॉट सजेस्ट बिकॉज आई डोंट नो, and it would be wrong for me to suggest some other teacher who is doing justice to it. I won't be able to. Just remember that other teachers all teach via PowerPoint या Squeezer. So ultimately you get some support, थोड़ा push मिल जाता है, direction मिल जाता है. So that should be your expectation so that you are not discouraged. ठीक है? So I think let's not unnecessarily drag. Feb 26 और August 26, somebody is asking, भाई अगर आपका अगस्त में एग्जाम पास हुआ है अभी, तो यू शुड गो फॉर August 26. Why Feb 26? The matter is very rich, बहुत अच्छा rich matter, enjoy the stuff. So I am preparing for Feb 27. I cannot write up in August 26 due to peak office time. No issues. If you are preparing for Feb 27, तो आप धीरे धीरे प्रिपेयर करो for Feb 27. So sir, when should I start? Syllabus change हो गया तो सिलेबस चेंज हो गया तो हम लोग आपको इंक्रीमेंटल प्रोवाइड करेंगे और आपको थोड़ा रेस्ट लेना है. एंड यू वांट टू स्टार्ट आफ्टर द सिलेबस गेट्स अनाउंस्ड, सो वेट फॉर अराउंड 4 months 5 months, देन स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर 27. Feb 25, August 25, क्या बोल रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है. इज इट पॉसिबल टू गो फॉर August 26 विद जॉब? यस, मोस्टली एवरीबडी हैज अ जॉब. मोस्टली एवरीबडी हैज अ जॉब. 200 आवर्स का लेक्चर है, कैलकुलेशन कर लो ना, लेक्चर्स कितने महीने में सल्टा लेंगे. If people get to it, they can finish off the lectures by mid-Jan or January, isn't it? They can finish off the lectures by mid-January or January. Lectures का stress नहीं है यहाँ पे.
स्ट्रेस है रिटेंशन एप्लीकेशन का. नो, इट्स अ सेपरेट पेड थिंग. पर्सनल ग्रेडिंग में कितना टाइम मेरा जाता है कोई लिमिट नहीं. इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द पैकेज. जो ये है वो केवल लेक्चर्स का है. पर्सनल ग्रेडिंग इज सेपरेट बट इट्स अ डिस्काउंटेड फीस फॉर SSCI. आई थिंक इट इज 50% डिस्काउंटेड. Personal grading with the entire checking which we do. Last time we charged 6,000 for SSCI students and 12,000 for non-SSCI, जो मेरे को याद है. I'll be as frank as possible. It's better to speak out frank, especially to professionals of level 3. अभी तो पेपर डिजाइनिंग चल रहा है मेरा. आई एम डिजाइनिंग न्यू आइटम सेट्स बिकॉज ऑल द प्रीवियस आइटम सेट्स विच आर देयर वो सारा स्क्रैप करके वो क्लासेस में यूज करेंगे. अभी वी आर गोइंग टू यूज देम इन क्लासेस. द एंटायर पेपर विल बी लीक्ड, जो पेपर था पुराना. ओके, तो आई थिंक वी शुड नॉट ड्रैग द स्टफ. आई थिंक सब कुछ बोल दिया मैंने मोटा मोटी. सो लेट्स सी यू ऑन द 1st of November. वी आर स्टार्टिंग फिक्स्ड इनकम. और फिक्स्ड इनकम बता रहा हूं क्या चीज से स्टार्ट करूंगा. सुनना, मेरे को ना कॉमन सेंस पे इतना भरोसा है CFA स्टूडेंट्स के कि फिक्स्ड इनकम के लास्ट चैप्टर से स्टार्ट करने वाले हैं. क्रेडिट स्ट्रैटेजीज. वी आर गोइंग टू स्टार्ट फिक्स्ड इनकम पीछे से. क्रेडिट स्ट्रैटेजी सर ऐसे कैसे समझेंगे हम लोग? 100% समझ में आएगा सर. जो नए ज्वाइन करें उन लोग को भी क्या, उन लोग को तो और ज्यादा. ठीक है, we'll start fixed income from the last chapter, credit strategies, and each and everything will be understood by you. Don't worry. ठीक है. In the meantime, you can start with asset allocation, derivatives. Okay, you can start with this stuff. चलो, see you on the 1st November face to face. I don't know it's a Saturday or Sunday. 1st November मैंने टीम को बोल दिया था तो एक क्लास तो उस दिन करेंगे. तो ये मत बोलना आपने तो सैटरडे संडे बोला था. ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी आप भी इंजॉय करो, मेरे को भी इंजॉय करने दो. ठीक है. बट एक चीज है कि लेवल 3 इज अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट अचीवमेंट. नॉट पास होना बट अच्छे से पास होना. बिकॉज लेवल 3 आपने अच्छे से किया इसका मतलब आप में क्वालिटीज है फंड मैनेजर बनने का. और लेवल 2 अच्छे से किया तो आप में क्वालिटीज है एनालिस्ट बनने का. लेवल 1 अच्छे से किया तो आप में क्वालिटीज है क्या बनने का, क्या बोलूं, मेरे ख्याल से क्वालिटीज है वेल्थ मैनेजर बनने का. CFP कर लो. किसी ने L1 किया, CFP कर लो, वेल्थ मैनेजर बन जाओ, सॉफ्ट स्किल्स दिखाओ अपना. चलो, थैंक यू, बाय बाय, थैंक्स फॉर अटेंडिंग. आई एम रियली सॉरी कि अपने यूरन ऐप पे कर नहीं पाए इसको, कुछ दिक्कत हो गया था. थैंक यू.